Happy New Year to you all. We have 14 legislators in Nishi community. The Nishi legislatures had a meeting yesterday, and as a result of yesterday's meeting, we had decided to give you this press briefing on the issue of 36 hours ban call given by all Nishi Youth Association Anya. You are aware that we have in the top Nishi Elite Society, and we have Nishi's legislature. Then the student wing, all Nishi Students Union is also there, and Anya represents the youth wing. And there are all other affiliated organizations also. We had a meeting of Nishi consultative meeting of NES, Nishi legislature, Anya, ANSU, Agri Allied Federation, NACOS, and all others recently. Even in that consultative meeting, fourth consultative meeting, the issues raised by the Anya this time, alleging wild allegation on chief ministers in Pema Khandu, has been disowned by us, including NES, and there is no iota of truth behind the allegation. The Nishi legislature is very loud and clear in its view, intent that we are with the government led by Sri Pema Khandu. Any allegation leveled by Anya is baseless and is not related to the greater interests of Nishi community. Therefore, Nishi legislature have decided to disown the issues raised by Anya in totality. And 14 of the MLAs have given a signature supporting the government and also requested the Anya to withdraw the ban call, and our resolution has been given, the copy of resolution has been given to Nishi Elite Society yesterday. The copy of signed copies are here with us also. We had the four resolution. For your information, I'll read it out. That the members unequivocally denounce the move of all Nishi Youth Association for organizing undemocratic ban call against the government to fulfill their illogical and illegitimate grievances, which is not related to the greater interest of Nishi community. Number two, the Nishi legislature desires that APEC organization of the community, the Nishi Elite Society, effect a proactive role to prevail upon all Nishi Youth Association to withdraw the ban call. The House further urged upon the officer of Nishi Elite Society to de-recognize the incumbent Anya team led by Sri Byabang Joram if Para 2 above is not adhered to in line with the regulation adopted in the first consultative meeting of NES, Nishi legislature, Anya, ANSU, etc., wherein it was agreed to channelize grievances through proper channel. In the event of failure to abide by our request as stated in para 1 to 3, the Nishi legislature shall not be held responsible if the government take stern legal action against the enforcer of illegal and undemocratic ban call as per the law of the land.
That was a 4-point resolution we adopted yesterday, and the copy has been handed over to NES for further course of action. और हम लोगों के ऑन बिहाफ ऑफ मैं एक इसी लेजिस्लेचर का कोऑर्डिनेटर का हिसाब से मैं एड्रेस कर रहा हूँ, और कुछ पूछना होगा तो मेंबर्स ओपन आप लोगों को आंसर देंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग का एक ही राय बनता है कि ये एलिगेशन, ये इश्यूज जो है निशी से रिलेटेड नहीं है, एंड हम लोग जो एल्डरली रोल कम्युनिटी प्ले कर रहे हैं अरुणाचल में, वी आर फॉर पैन अरुणाचल, वी आर फॉर गुड गवर्नेंस, वी आर फॉर गुड लीडरशिप अंडर दी लीडरशिप ऑफ पेमा खंडू। इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है, और बहुत ही अच्छा ढंग से सरकार चल रहा है। इसको चलने देने के लिए निशी एमएलए का तरफ से 2 इंच का भी डाउट नहीं है, हम आगे खड़ा है। और आन्या का जितना भी इश्यूज है, ना सरकार से रिलेटेड है, ना कम्युनिटी से रिलेटेड, ना स्टेट का इंटरेस्ट में है, तो इस एलिगेशन को हम लोग वाइल्ड और एक बेकार का एक एलिगेशन मानता है। थैंक यू। Any clarifications looking for? From any members you can. So regarding the allegation labeled by Anya, they are saying that CM himself is doing contract works and all the government works also, so many road projects also is done by CM and his family. So what you will say, because it's a state issue. If someone is doing corruption, whether it's a CM or anyone, they should give some clarification. See, CM is not a contractor. There might be a business entity of his family, and it is not constitutionally debar anybody from doing business by a company formed by the family members or any other relative members. कोई इसमें गलत काम तो नहीं है। Just excuse me, by I think in the afternoon, the government is going to give all the clarification on the allegations level against the Honorable Chief Minister. So in the afternoon, the government is going to have a press conference with you again in the afternoon, so you can get all the clarifications in that press conference. तो कोऑर्डिनेटर साहब, हम लोग ये मान के चले कि जो हमारा निशी एमएलए है, क्योंकि ऑनरेबल मंत्री जी भी है यहाँ पर, काफी मिनिस्टर साहब लोग भी है, और हमारा निशी जो सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में, तो आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आन्या का जो एलिगेशन है, जब हम लोग देखते हैं और उनका एलिगेशन जब हम लोग सुनते हैं, तो वो कोई एमएलए का ऊपर में इंडिविजुअल किसी को एलिगेशन नहीं डाला है। और वो आन्या जो बार बार बोल रहा है कि आई हैव नो प्रॉब्लम विद द पेमा खांडू ऑल्सो बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनका एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। ऐसा यूनिटी, इंटीग्रिटी, वो तो निशी इज ऑलवेज यूनाइटेड फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज सिंस द बिगेस्ट ब्रदर इज देयर। तो यही चीज है, आन्या इज डिमांडिंग अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द पेमा खांडू, नॉट फ्रॉम द एनी इंडिविजुअल एमएलए, नॉट द हिमसेल्फ। ये है सर। ये मैं एक चीज आप लोग बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये आफ्टरनून को आप लोग बता ही देंगे। ऑन 29th of December, government from the chief minister office have extended through in writing inviting all Nishi to association for clarification, but they didn't turn up. सर, आपका बारे में हम लोग बात किया था सर। आन्या का प्रेसिडेंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था अरुणाचल प्रेस क्लब में। व्यापक जोराम का कहना था कि हम लोगों को इनविटेशन 11 बजे में मिला और 2 बजे का मीटिंग था। नहीं, इसका बात मेंबर्स कहीं भी नहीं था ईटानगर में, हमको कलेक्ट करने के लिए समय नहीं, ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये 11 बजे में लेटर दिया, ठीक है, उनका बोलना भी सही है। 2 बजे में हम लोग बुलाया, तो उनको मैंने पर्सनली टेलीफोन किया कि अगर आपका एग्जीक्यूटिव चला गया, न्यू ईयर के लिए चला गया, हमको भी बताया, हम फोन किया था, तो मैंने उनको बोला कि तो 3 जनवरी तक हम लोग फिर बैठेंगे। तो इन लोग कम्युनिकेट करने का बात था, तो अभी नहीं किया। तो अगेन टुडे, यस्टरडे, दिस लैंड डिप्यूटी कमिश्नर कैपिटल रीजन का उन्होंने फिर इन्विटेशन किया है। नाउ दे मस्ट बी डिस्कसिंग, तो इफ देयर इज एनीथिंग फॉर क्लैरिफिकेशन द गवर्नमेंट इज रेडी, तो वो तो आपको आफ्टरनून को बता ही देंगे। तो एज ऑफ नाउ जो स्टैंड जो निशी लेजिस्लेचर्स का स्टैंड को ऑनरेबल मेंबर हायर मंपी जी ने आप लोग को एज ए कोऑर्डिनेटर ऑफ दी निशी लेजिस्लेचर विद दी निशी लाइफ सोसाइटी एज ए कोऑर्डिनेटर आप लोग को ब्रीफ करती है। सर, एक चीज तारीफ करने का लायक है, पेमा खांडू सरकार जब से आया तब से बर्ड कल्चर जो काफी अवॉइड किया गया था, बहुत। ये शायद हमको लगता है कि ये भी शायद
स्किप ऑफ हो जाएगा, क्या लगता है सर? होम मिनिस्टर साहब यदि आप बोल रहे हैं थोड़ा सा आप बता सकते हैं, क्योंकि आप गृह मंत्री भी है सर। क्या चीज को? बंद कल्चर का ऊपर में कोई भी नहीं चाहता कि बंद कल्चर को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इट अफेक्ट हैम्पर्स ऑल द एक्टिविटीज। और अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है सर, काफी इंडिजिनियस कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है, प्लस बिहू सेलिब्रेशन है, मकर संक्रांति है, उसके बाद में हमारा अरुणाचल नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन का अरुणाचल में चल रहा है। इट इज हिस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग भी नहीं चाहते बंद कल्चर को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए होम मिनिस्टर साहब को बोलते हैं यदि आप लोग का डिस्कशन फेल होता है इन केस, तो क्या आप लोग अन्या को फिर से आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि बंद को विड्रॉ करने के लिए? नहीं, ये देखिए, एक तो चीज़ सबसे आगे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो निशी लेजिस्लेशन में कल जो मीटिंग हुआ था उसमें ये एक चीज़ पॉइंट को रखा गया था कि फॉर द लास्ट जो 7 लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स, निशी सिर्फ नहीं बल्कि इंटर 60 मेंबर्स ऑफ द हाउस जो है, हम लोग लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग पेंडेमिक में लड़ता रहा, प्रैक्टिकली डेवलपमेंट नहीं हो पाया बिकॉज दिस इज ए ग्लोबल जो क्राइसिस चल रहा था, पेंडेमिक जो है, जिसके चलते अभी थोड़ा सा सिचुएशन हालत थोड़ा सुधर रहा था। तो सबका एक इच्छा है कि अपना प्रदेश को, अपना कंस्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसके चलते बंद कॉल इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन दिस लाइन। और बंद कॉल को बाय एनी वट एवर जो भी पोजीशन हो, कुछ भी हो, बिकॉज आज का डेट में अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू किसी को भी कभी भी समय में दरवाजा खुला है कुछ भी चीज़ बातचीत करने के लिए, चाहे आप क्लैरिफिकेशन के लिए हो या कुछ चीज़ के लिए भी हो। और वैसे दिस इज प्योरली ए प्रो पीपल गवर्नमेंट। कोई भी चीज़, इवन वन ऑफ द जो हिस्ट्री में एक आप लोग हिस्टोरिक डिसीजन है कि जब से पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर बना है, इवन बजट डिस्कशन को भी लोगों से सलाह मशवरा लेता है। तो देयर इज ए प्री बजट डिस्कशन इन्वॉल्विंग एवरी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल जो इनपुट को भी लेते हैं, और समटाइम दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द बजट जो फाइनलाइजेशन वो होता है। तो इसलिए अंडर नो सर्कमस्टेंशियल कंडीशन द लेजिस्लेचर निशी लेजिस्लेचर माने एग्रीज फॉर एनी काइंड ऑफ बंद कॉल। तो ये चीज़ एक तो आप लोगों को मैसेज देना था और कन्वे करना था, जो आप लोगों को कन्वे किया गया है टू द कोऑर्डिनेटर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर हम पूछेंगे सर मेरा तरफ से। सर मेरा सवाल रहेगा मंत्री सर को। सर you have been one of the prominent ex-AMSU president, you know, you have played a vital role in the student political as well. So what do you think, sir, what is the relevance of Anya today? See, relevance, it's a different yardstick today. Anya might have some certain relevance with the society, but there are parameters already set for every affiliated organizations. Even parameters are set for AMSU, parameters are set for Anya and all other affiliated organization under the community. तो इनका ये मीनिंग तो नहीं बनता कि anybody pretended to be representing any community can do anything and pick up any issues, ये होता नहीं है। सोशल सैंक्शन जरूरत है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन निशी का अंदर में अपने इंडिविजुअल ग्रज को लेकर या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके इशू उठाएंगे, that is not for the greater interest of the community and that is also not in the interest of the state. ये चीज सर आपने बोला अभी आन्या का पास पैरामीटर है, तो ऐसे आप निशी लेजिस्लेटर, तो कभी उन लोगों को आप ये गाइडेंस मतलब सजेशन देने के लिए कोशिश किया, कभी बुलाया? यस टाइम एंड अगेन। इवन हम लोगों का पास में कंसल्टेटिव मीटिंग जो है जिनमें आन्या खुद ही मेंबर है, और वहाँ हमेशा कहा गया है, इवन इन द फर्स्ट कंसल्टेटिव मीटिंग we had a resolution to channelize the grievances through a proper channel. इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी निजी समाज में इशू है या ग्रीवेंसेस है वो डिस्कस करेगा NES के लेवल में, उसके बाद वो आएगा हमारा 3 मिनिस्टर्स का थ्रू, निजी में 3 मिनिस्टर है उनका थ्रू जाके तब गवर्नमेंट को प्लेस करेगा। इफ सपोज द ग्रीवेंसेस इज नॉट एड्रेस, देन जाके कम्युनिटी लाइन में क्या डेमोक्रेटिक एक्शन लेना है वो लेना चाहिए। यहाँ तो आपको एनी टॉम डिक एंड हैरी इश्यूज पिकिंग अप, वो कोई समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है और सोशल सैंक्शन नहीं है इस बार भी। तो सर आपको क्या लगता है वो जो
अगर वो कम्युनिटी का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो आप लोग का बात नहीं सुन रहा है तो क्या लगता है आपको? तो ये जो अन्य जो कर रहा है कौन इतना जबरदस्ती कर रहा है तो क्या लगता है इसमें क्या नहीं, है? हम लोग ने लेजिस्लेचर ने रेजुलेशन पास करके एनईएस को दे दिया है कल. देन एनईएस विल टेक ए कॉल ऑन दिस. और वैसे भी आन्या का टर्म्स ये फरवरी को खत्म है. देन वी आर होपफुल दैट एनईएस विल टेक ए सर्टेन स्टर्न एक्शन. ये जो आफ्टरनून को आप लोग को गवर्नमेंट का तरफ से ऑनरेबल होम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का तरफ से आप लोग को प्रेस में क्लैरिफिकेशन देंगे. देखिए, अभी जो इस बार जो अन्या जो बंद कॉल किया है, इस बंद कॉल को निशी कम्युनिटी से हम लोग जितना जो लेजिस्लेचर के साथ और जितना निशी डिस्ट्रिक्ट है पूरा कम्युनिटी हम लोग कंडेम करता है. और बिल्कुल ये गलत है और इलीगल बंद कॉल है. और इसको बिल्कुल हम लोग लेजिस्लेचर तो सरकार का साथ हम लोग बिल्कुल मजबूत का साथ करा है. और पूरा आपके सब मीडिया के माध्यम से जितने भी निशी भाई बहन जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि बिल्कुल ये इलीगल में कोई निकलना नहीं है, कोई पार्टिसिपेट नहीं करना, इस बंद कॉल को कोई सपोर्ट नहीं करना. हम लोग बिल्कुल इसमें कोई भी प्रकार का हम लोग कंडेम करते हैं. एनईएस भी साथ नहीं है इसमें, लेजिस्लेचर साथ नहीं, कोई पूरा निशी का 100%, कुछ अन्य कुछ मेंबर्स है, बाकी कोई साथ नहीं है. तो ये हमारा आप लोग का मीडिया का थ्रू हम लोगों को एक खास करके निशी जितना भी डिस्ट्रिक्ट है यूथ लोग को, और सुनने में आया कि जो डिस्ट्रिक्ट से कुछ डेलीगेशन आ रहा है और बिल्कुल डेलीगेशन नहीं आना, और इसमें हम लोग कोई प्रकार का निशी लोग साथ नहीं. थैंक यू. नातुंग साहब बंद कल्चर को कोई साथ नहीं देता, हम लोग भी साथ नहीं देते हैं. तो आप लोग तो इलेक्टेड लीडर है, आप लोग तो जरूर साथ नहीं देंगे क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पब्लिक को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं. 100% पब्लिक को, नॉट इवन जो होता है, जो वोट मारता है, जो पैदा होता है जो स्टेट में, उस सब का रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, सरकार लोग. लेकिन एक चीज सर सवाल बार बार उठता है, जब बंद को डिक्लेयर करने के बाद एमएलए लोग, खास करके हमारा जो लार्जेस्ट कम्युनिटी का एमएलए लोग एक ही बार में जागरूक हो गया, पहले इसका ऊपर में क्यों डिस्कशन नहीं हुआ? आनिया बार नवंबर से बार अल्टीमेटम का ऊपर अल्टीमेटम दे रहा है सरकार. उसको जैसे गृह मंत्री जी एक बार बुलाए उनको बात करने के लिए, डेट डालना, इसके बाद में भी सर बहुत तरीका था बात करने का. देखिए, देश का तरफ से भी था, जैसे आप भी बता रहे हैं. आपको बता रहा हूँ कि गृह मंत्री जी ने कल हम लोग मीटिंग में भी डिस्कस किया कि अन्या ने जो रिपोर्ट मांगा है, जो गवर्नमेंट का सरकार का डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में जो एलिगेशन दिया है, उसको सरकार का तरफ से पूरा रेडी करके अन्या को डिस्कस के लिए अन्या को बुलाया, सीएमओ से लिखित में भेजा, गृह मंत्री जी ने टेलीफोन भी किया, हम लोगों ने भी काफी किया, लेकिन वो हम लोग का साथ बात करने को तैयार नहीं है. बिल्कुल सरकार के साथ में हम लोगों से बात करने का तैयार नहीं है. अभी भी हम लोग रेडी है. अन्या ने जो मांगा है, डॉक्यूमेंट मांगा, जो क्लैरिफिकेशन मांगा है, अभी गृह मंत्री जी के पास है. अभी भी हम लोग रेडी है, अभी भी आइए, हम लोग बात करने के लिए तैयार है. वो बात करना नहीं चाहता तो क्या करेंगे? जस्ट ए मिनट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये क्लियरिफिकेशन होना है कि ये जो प्रेस ब्रीफिंग में आप शायद देख रहा है 3 मिनिस्टर है, जेडीयू का ऑनरेबल मेंबर है, एनपीपी का ऑनरेबल मेंबर है. तो यहाँ में कोई मंत्री नहीं है, यहाँ में कोई जेडीयू नहीं है, यहाँ में कोई एनपीपी नहीं है, यहाँ में कोई बीजेपी नहीं है. वी आर जस्ट लीसी लेजिस्लेचर्स. तो लीसी लेजिस्लेचर का ओपिनियन को आप लोगों को बताना था. तो इट इज इन ए रिटन फॉर्म एंड दिस विल बी सर्कुलेटेड टू एवरी वन ऑफ यू. तो सरकार का जो ये क्लैरिफिकेशन है, वी विल मीट अगेन इन द आफ्टरनून फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. बट आई हैव तो फायदा लेते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि आई हैव रिक्वेस्टेड द डिप्टी कमिश्नर कैपिटल रीजन टू कन्विंस देम एंड ब्रिंग टू द गवर्नमेंट. वी विल डिस्कस. अगर वो डीसी सब लेके आते हैं, तालुक प्रथम साहब लेके आते हैं, हम लोग बात करेंगे. Not the door, not the even window door are all open, and they can come at any point of time to discuss with us for a solution. तो ये बात है. Thank you very much. Thank you. Sir, last question. What if a bun call happens? What will be the
decision of the 13 Nishi legislature? No, it is already Decided. he have already given you the decision. So I think you came late little bit. So it will be supplemented to you. It is आप in the लोग को written मीडिया को form. भी दे देंगे. It is in a written form. Sir, Put it. even after clarification, if they will not withdraw their band call, what action, being a home minister, what action you will take? We will meet you in the afternoon again. For that. Yeah. Thank you. Thank you.